غیر قانونی تارکین کی واپسی کا معاملہ، واپس نہ جانے والے غیر ملکی افراد اور ان کو پناہ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا ملک میں ہونے والی دہشت گردی میں غیر قانونی مہاجرین بہت کا ہاتھ ہے۔ افغان باشندوں کو باعزت رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہے قانونی طریقے سے آئے۔ مزید بولے، نادرا نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے، وہاں سے ڈیٹا غائب ہو جانا ایک شرمناک عمل ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا معاملہ، واپس نہ جانے والے غیر ملکی افراد اور ان کو پناہ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا ملک میں ہونے والی دہشت گردی میں غیر قانونی مہاجرین کو بہت ہاتھ ہے۔ افغان باشندوں کو باعزت رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہے تو قانونی طریقے سے آئے۔ جو ڈرائیو چل رہا ہے ایلیگل ایلینز کے لیے، اس کا آج آخری دن تھا اور کل سے اور پرسوں کے ساتھ ہمارا یہ آپریشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا، جس میں ہم جو جتنے بھی ایلیگل ایلینز ہیں، وہ چاہے کسی بھی ملک سے ہوں، ہم ان کے خلاف ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک سوئفٹ آپریشن ہوگا۔ کوئی اس طرح کا آپریشن نہ سمجھیے گا کہ کوئی ماردھاڑ شروع ہو جائے گی۔ ہم نے ان کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ہم نے یہاں سے ان کو واپس ریپیٹریٹ کرنا ہے ان کے اپنے ملکوں میں۔ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کے لیے ہم نے ایک ویزا پالیسی بنائی ہے، تو اس کے تحت ہم انکریج کریں گے ان لوگوں کو جو ایلیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں کہ واپس اپنے وطن پہ جائیں، اپنے ملک میں جائیں اور لیگل پروسیس کے ساتھ واپس آئیں اور کنٹریبیوٹ کریں۔ اتنی شرم کی بات ہے کہ ہماری نادرا ایک جو ہے نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ بن چکا ہے اور اس میں ہمارا ڈیٹا کا بریچ ہو جانا یا آئیڈینٹی تھیفٹ ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت معمولی بات نہیں ہے۔ نیشنل انٹرنیشنل اور جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں ان کا ایک بڑا کردار ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 24 ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں پچھلے 8 مہینوں میں اور ان 24 اٹیکس میں سے 14 جو ہیں وہ افغان نیشنلز نے کیے ہیں۔ دیکھیں 2 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ جا چکے ہیں، جو موجود ہیں ان کی جیو فینسنگ ہو رہی ہے، ان فگرز پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں بیکاز کچھ عرصے بعد آپ اس کو چلا رہے ہوں گے۔ تو جو جا چکے ہیں وہ تقریباً والنٹیئر جنہوں نے کیا اور ہم اس کو بڑا انکریج کرتے رہیں گے۔ ہمارا جب یہ آپریشن چل رہا ہوگا بھی ہم انکریج کریں گے کہ لوگ والنٹیئر ریٹرن کی طرف جائیں تاکہ وہ اسموتھ جا سکیں، بجائے ہمارے ہولڈنگ سینٹرز میں جائیں اور وہاں پر 2 راتیں 3 راتیں گزاریں۔ پاکستان میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کا ملک چھوڑنے کا معاملہ، حساس اداروں نے فیصل آباد ڈویژن میں غیر ملکیوں کی فہرستیں مرتب کر لیں۔ متعدد افغان باشندوں کے ویزوں اور مہاجر کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کا ملک چھوڑنے کا معاملہ، حساس اداروں نے فیصل آباد ڈویژن میں غیر ملکیوں کی فہرستیں مرتب کر لیں۔ متعدد افغان باشندوں کے ویزوں کا اور مہاجر کارڈز کی میعاد ختم ہو چکی۔ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کو ملک چھوڑنے کے لیے دی جانے والی ڈیڈ لائن پوری ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ حساس اداروں نے فیصل آباد ریجن میں موجود غیر ملکیوں کی فہرستیں مرتب کر لیں۔ فیصل آباد ریجن میں 1807 افغان باشندے غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ ضلع فیصل آباد 967، ٹوبہ میں 142، چنیور 355 اور جھنگ میں 343 افغان مرد و خواتین غیر قانونی مقیم ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مقیم افغان باشندوں کے ویزے کی میعاد عرصہ دراز سے ختم ہو چکی ہے۔ جھنگ کے غیر ملکیوں کے مہاجر کارڈ کی میعاد 30 جون کو ختم ہو چکی ہے۔ ضلع چنیور سے 17 غیر قانونی مقیم غیر ملکی روپوش ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد میں غیر قانونی افغان باشندے بغیر کسی بھی کاغذات کے پاکستان میں داخل ہوئے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ وفاقی حکومت کا سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ، تنور مالکان نے غیر اعلانیہ طور پر روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ جھنگ میں روٹی 25 روپے میں فروخت کی جانے لگی، پرائس مجسٹریٹس بھی لمبی تان کر سو گئے۔ وفاقی حکومت کا سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ، تنور مالکان نے غیر اعلانیہ طور پر روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ جھنگ میں روٹی 25 روپے میں فروخت کی جانے لگی، پرائس مجسٹریٹس بھی لمبی تان کر سو گئے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ تنور مالکان نے بھی غیر اعلانیہ طور پر روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ تنوروں پر روٹی 25 روپے تک فروخت کی جانے لگی۔ گھر میں گیس کی بندش کا شکار شہریوں کو ہوٹلوں پر بھی سستا کھانا میسر نہیں۔ محکمہ انڈسٹریز سمیت پرائس مجسٹریٹ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ناشتہ اور دوپہر کے وقت گیس کی بندش معمول بن چکی، شہریوں کی دہائی۔ بولے ہوٹل سے مہنگی روٹی خریدنے پر مجبور ہیں۔ حکومت اعلان پر دکاندار مہنگائی کا طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ سردیاں گیس نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے، صبح بھی بغیر ناشتے تو کم تے جانے ہیں، شامی جو آنے گیس ہوتی کوئی نہیں۔ حکومت ریٹ تو ریٹ بتا رہی ہے،
हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करे, रहम करो को जीण दो सानू। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई को रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मालिकान परेशान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ दे। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मालिकान परेशान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं हुकूमत अवाम को रिलीफ दे। महंगी गैस ने गरीब आवाम की उम्मीदों को आग लगा दी। गैस की कीमत में मुसलसल इजाफे पर चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम ने कहा कि गैस महंगी होने से गरीब के लिए रोटी का हसूल मुश्किल हो जाएगा। अगर हुकूमत गंदम सब्सिडाइज रेट पर मिलों को दे तो आवाम को इस महंगाई के दौर में सस्ता आटा मिल सकता है। अगर आप इसी गंदम को सब्सिडाइज करके 3500 रुपए में दें तो यही आटे का थैला जो इस वक्त 1400 में बिक रहा है ये 1000 के अंदर बिकेगा। गैस की कीमत में इजाफे पर फैसलाबाद के शहरियों ने कहा सुई गैस थी जिसके बिल हम बआसानी जमा करवा लेते थे। निगरान वफाकी हुकूमत ने वो भी महंगी करके महंगाई का एक और बोझ डाल दिया है। चंद घंटे आने वाली सुई गैस का फिक्स बिल देना गरीब पर जुल्म है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। कोई नाश्ते से बैठा है तो कोई दोपहर के खाने से। गैस आती नहीं, बिल लाजमी आएगा। हम निगरान वफाकी हुकूमत से हाथ जोड़ते हैं, खुदारा हम पर रहम करें और फिलफौर इंतखाबात करवाएं। गर्मियों में पूरी गर्मियाँ हमने ना जो एलपीजी इस्तेमाल की है घरों में, और ऊपर से ये जो गैस का बम इन्होंने फेंक दिया हम पे। हम तो पहले ही मरे हुए हैं इनसे। ये जो कहते हैं इमरान खान आया या नवाज शरीफ आया या कोई भी पार्टी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें रिलीफ मिलना चाहिए। बिल उससे भी महंगे, क्या करेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे गुजारा होगा। हर दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और गैस जो है रात को पूरी रात बंद रहती है। 9 बजे बंद कर देते हैं, सुबह 7 बजे आती है। ये पता नहीं कब छुटकारा होगा इनसे, कब गैस आएगी। फ्लोर मिल्स और शहरियों ने गैस की कीमतों में किया गया इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगी बिजली और गैस, साथ में खराब मुआशी हालात। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास 6 माह के बाद का कोई ऑर्डर न बचा। मकामी एक्सपोर्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। मकामी एक्सपोर्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ दिया कहते हैं अक्टूबर में मुतादिद यूनिट्स बंद हुए, आने वाले दिनों में मजीद यूनिट्स बंद होंगे। मुल्क के खराब मुआशी हालात, महंगी बिजली और गैस से पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर स्याह बादल मंडलाने लगे। एक्सपोर्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहा हमारे ऑर्डर्स महदूद होने लगे हैं। आलमी मंडी में पाकिस्तान के लिए ऑर्डर्स मौजूद, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कोई हम पर एतबार करने को तैयार नहीं है। 6 महीनों के ऑर्डर्स बाकी रह गए हैं। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन काशिफ ज़िया ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा हमारे मुतअद्दिद यूनिट्स बंद हो चुके हैं, मजीद नवंबर में होने का अंदेशा है। हमारे मुकाबिल मुमालिक से हमारी कीमत इतनी ज्यादा है कि कोई ऑर्डर देने को तैयार नहीं। जो ऑर्डर्स एक्सपोर्टर्स के पास हैं वो अपनी सलाहियत पर हासिल करता है, जिनको पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। अभी तो आपके पर्सनल टर्म्स हैं, अगर आपने किसी को कन्विंस कर लिया, क्योंकि फैक्ट्रीज इस टाइम पे ब्रेक इवन पे भी नहीं चल रही हैं, फैक्ट्रीज नीचे जा रही हैं और इतनी जो लेबर हमारी फैक्ट्रियों में काम करती है वो आने वाले वक्तों में, हम तो इस टाइम पे अगर किसी फैक्ट्री के पास ऑर्डर है तो वो फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट नहीं है। सनतकारों ने कहा है कि जब तक बिजली सस्ती नहीं होती इंडस्ट्री को चलाना नामुमकिन हो रहा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ पर बताएं सर्जरी आलात नायाब। फैसलाबाद अलायद अस्पताल 2 में मरीजों का इलाज मुश्किल हो गया। अस्पताल इंतजामिया ने सर्जरी आलात का टेंडर न जारी किया, जिसके सबब सेहत सहूलत कार्ड में भी सहूलत मैसर न रही। गरीब और मुस्तहिक मरीज महंगे दामों, रोड, प्लेट समेत दीगर सर्जरी आलात खरीदने पर मजबूर हैं। 2 में ट्रैफिक समेत दीगर हादसात का शिकार मरीज इलाज के लिए खार होने लगे। अस्पताल में सर्जरी आलात ना होने से मरीज महंगे दामों, रोड, प्लेटें समेत दीगर सर्जरी आलात खरीदने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब सेहत कार्ड पर हड्डी पट्टा जोड़ के मरीजों को इलाज की सहूलत मैसर नहीं है। अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में मौजूद एक खातून ने बताया बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, इमरजेंसी वार्ड में प्लेटें डाली गई थी जो 6000 रुपए की बाहर से लाए थे, जबकि सरकारी अस्पताल है, सर्जरी आलात मरीजों को मुफ्त मिलने चाहिए। बच्ची ने धक्का दिया था, इधर हम इमरजेंसी में आए थे ना, इन्होंने 2 दिन रखा था, फिर इसके बाद ऑपरेशन हुआ ना, इन्होंने 6000 रुपये प्लेटों का लिया था। बाहर से आई थी, इन्होंने अपने पास से इधर से अंदर से नहीं मिली थी। यही है कि चलो माड़ा बंदा गरीब बंदा आंदा है इत्थे इसे तो कि चलो फ्री खाते काम होइए ते ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
MS अलाइड हस्पताल 2 डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा, मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल परचेज करना थी जो नहीं हो सकी। हड्डी पट्टा जोड़ से मुताल्लिक सर्जरी आलात के लिए लोकल टेंडर अपनी सतह पर करने लगे हैं और उम्मीद है जल्द टेंडर के बाद सर्जरी आलात मरीजों को मुयस्सर होंगे। जितने भी मेडिसिन है या सर्जरी के आलात हैं, इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में होता है। और वो इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली जो आर्थोपेडिक के इम्प्लांट है ना, उनका अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हुआ। हमने खुद अपना लोकल टेंडर कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे बहुत जल्द जो है ना आलात मुहैया कर दिए जाएंगे। सरकारी अस्पताल में सर्जरी आलात मुयस्सर ना होने के बाइस मरीज इलाज की सहूलत से महरूम हो रहे हैं। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान हुकूमत के शोबा सेहत में इनकलाबी इकदाम जारी। फैसलाबाद में सेहत सहूलत कार्ड काउंटर 24 घंटे फाल रहेंगे। निगरान हुकूमत का मरीजों के लिए एहसन इकदाम। फैसलाबाद में सेहत सहूलत कार्ड काउंटर 24 घंटे फाल रहेंगे। 3 शिफ्टों में काम होगा। इतवार के रोज भी सेहत सहूलत काउंटर खुला रहेगा। वजीर आला पंजाब के अहकामात पर सेक्रेटरी हेल्थ ने हॉस्पिटल को हिदायत जारी कर दी। MS फोकल पर्सन सेहत सहूलत कार्ड डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा, वजीर आला मोहसिन नकवी का हॉस्पिटल पर बड़ा फोकस है। वजीर आला पंजाब के दौरों से हॉस्पिटल के हालात बेहतर हो रहे हैं। हॉस्पिटल में 2 शिफ्टों में सेहत सहूलत कार्ड काउंटर चल रहा था, जो कि अब 3 शिफ्टों में फाल रहेगा। आगे बढ़े आपको बताएं, आवाम के लिए मीठे का हसूल मुश्किल। चीनी सस्ती हुई, ना ही यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंची। टोबा के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के रैक खाली। इंसान की जिंदगी में मिठास का होना इंतहाई जरूरी है। ताहम टोबा के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पिछले 1 माह से चीनी से महरूम है। इंतजामिया जिला भर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी फराहम न कर सकी। जिला के 50 यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का 1 दाना तक मौजूद नहीं और चीनी के खाली रैक शहरियों का मुंह चढ़ा रहे हैं। 2 महीने तो नहीं आ रही चीनी, तो आई नहीं, 2-3 महीने तो नहीं आई। चीनी ਜਿਹੜੀ है ना 2 महीने तो नहीं आ रही ਤੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 500-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਥੈਲੀ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਤਜਾ ਵਾ गरीब आदमी ਤੇ सिर्फ रोटी खान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੀ नजरिया खोल लिया जाए। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कई दिन से चीनी गायब है। शहर के सब यूटिलिटी स्टोर्स पर गए हैं लेकिन चीनी नहीं मिली। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी तक मुयस्सर नहीं है। हुकूमत की जानिब से रिलीफ का लॉलीपॉप देकर तखा दिया गया है, जबकि कोई सस्ती चीज मुयस्सर नहीं है। हर तरफ महंगाई का राज है और मार्केट से महंगा घी, आटा और चीनी खरीदना बहुत मुश्किल है। 2-3 दफा आ चुका हूँ, कभी नहीं मिलेगा। कल भी आया, परसों भी कहना ये इतों नहीं मिलनी, शनाख्ती कार्ड तो ये नहीं थोड़ा मिलना है। कहना ये बेनजीर का कार्ड लैके आओ फिर मिलेगा सारा कुछ। 3-4 रुपए का फर्क है। जो 5-6 दिन हो गए हैं, आटा मिले ही नहीं है, ना चीनी, ना घे, ना आटा। कहना ये बेनजीर का कार्ड लैके आओ। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रिलीफ की फराहमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया फराहम की जाए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। गंदम की बवाई करीब, खाद माफिया बेलगाम। जंग में महंगी DAP भी नायाब। कीमतों का तायुन कंपनियों के रहमो करम पर। गंदम कैसे काश्त करें, काश्तकार परेशान। हुकूमती सतह पर पॉलिसी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। जंग में गंदम की बुवाई करीब आते ही फर्टिलाइजर्स माफिया बेलगाम हो गया। DAP खादों की कीमतों में कंपनियों ने आज खुद इजाफा कर दिया। रही सही कसर मंडियों में खाद की किल्लत करके पूरी कर दी गई। गंदम काश्त करने वाले काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा DAP महंगी होने के बायस एक बार फिर से गंदम की बेहतर पैदावार हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। कारों का कहना था कि DAP की कीमतों पर कंट्रोल पाने के लिए गुज़श्ता सालों की तरह रवां साल भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। कीमतों का तयन करने का काम भी कंपनियों की मर्जी पर मुनहसर है। तो DAP की अब जो मौजूदा कीमत चल रही है वो 13-13.5 हज़ार फ़ी बैग है, फ़ी बोरी का रेट है। हालांकि कंपनी वाले जो हैं, जो फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, वो अपनी मनमानी का रेट बनाते हैं, तो वो 1000 रुपया 1500 रुपया फ़ी बोरी प्लस लेते हैं एक्चुअल रेट से, कंट्रोल रेट से। काश्तकारों ने खादों की कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमती सतह पर पॉलिसी तश्कील देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। PHA जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो चिनाब क्लब जिना बाग फैसलाबाद की खूबसूरती की तबाही का सबब बनने लगा। चिनाब क्लब की हदूद बाग जिना की रनिंग ट्रैक को खराब करने लगी। चिनाब क्लब फैसलाबाद के तामीराती काम बाग जिना को मुतासर करने लगे।
कंस्ट्रक्शन मटीरियल लेबर वर्क ने बाग जना की हदूद में डेरे जमा लिए। जनाब क्लब जनाब बाग फैसलाबाद की खूबसूरती को तहस नहस करने लगा है। जनाब क्लब की हदूदें बाग जना के रनिंग ट्रैक को खराब कर रही है। जनाब क्लब फैसलाबाद का तमीराती काम बाग जना को मुतासिर कर रहा है। कंस्ट्रक्शन मटीरियल लेबर वर्क ने जनाब बाग की हदूद में डेरे डाल रखी हैं। शहरियों का कहना था कि पार्क की खूबसूरती तबाह की जा रही है। इंतजामिया आंखें खोले। लोग आते हैं, तफरीह सैर करते हैं और वॉक भी करते हैं इस पर। तो ये जो कंस्ट्रक्शन जो इंतज़ाम बन रहा है इसकी वजह से इसकी खूबसूरती में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो ज़िले को चाहिए तमाम को कि इसके खिलाफ एक्शन ले। ट्रालियों की आमदोरफ्त की वजह से रनिंग ट्रैक और बाग की खूबसूरती मुतासिर हो रही है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से जनाब क्लब इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में तामीराती शोबे से जुड़े ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए। डॉलर की कदर में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ मिला, सीमेंट का रेट फिर भी कम न हुआ। फी बोरी 1200 रुपए तक फरोख्त होने लगी। बिल्डर्स ने कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद सीमेंट का रेट कम ना होने पर तामीराती शोबे से मुंसलिक कारोबारी अफराद सीख पा। सीमेंट का बैग इजाफे के बाद 1190 से 1200 रुपए पर पहुंच गया है। तामीराती शोबे से जुड़े ताजर मोहम्मद बिलाल ने कहा कि डॉलर और पेट्रोल की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर सीमेंट महंगा कर दिया जाता है। अब उनकी कीमत कम होने पर सीमेंट की कीमत कम क्यों नहीं की जा रही? पेट्रोल जो है वो 40 रुपए सस्ता हुआ, डॉलर तकरीबन 40-45 रुपए से ज्यादा नीचे आ गया है। तो कम से कम सीमेंट की बोरी पे भी 100 रुपया इनको कम कर देना चाहिए था। 100 नहीं कर सकते, 80 रुपए, 90 रुपए, 70 रुपए कुछ तो बचत करते ना हमारे लोगों के लिए भी। जब हम हर चीज बढ़ने के ऊपर ज्यादा देते हैं तो फिर अब कम होने पे हमें भी कोई रिलीफ नजर आए, कोई मिले। गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस तामीराती शोबा भी मुश्किलात का शिकार है। सरमायाकारों ने सीमेंट की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा इब्लागियात के तलबात का सिटी 41 ऑफिस का दौरा, प्रोग्रामिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा सेक्शन, असाइनमेंट और LND डेस्क बारे आगाही हासिल की। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा इब्लागियात ने तालिबात को सिटी 41 ऑफिस का दौरा करवाया ताकि तालिबात को मीडिया की वर्किंग बारे आगाही मिले। चेयरपर्सन डॉक्टर सदफ नकवी, असातिज़ा और तालिबात ने मॉर्निंग शो में शिरकत की और दौरे को मुफीद करार दिया। यूनिवर्सिटी में तो हम बच्चों को थ्योरी पढ़ाते हैं। हमने लास्ट ईयर से हमने इसमें एडमिशन शुरू की है। थ्योरी से ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव करती हूँ और मैं हमारी जो वर्कशॉप थी वो भी इसी तरह से थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे, और वो रिसोर्स पर्सन जो थे वो बड़े जो इस शोबे में बड़े नामवर। हमारे डिपार्टमेंट ने भी ज़्यादा कोशिश की है। हमारी इससे पहले 2-3 वर्कशॉप्स भी हो चुकी हैं इसी के थ्रू, और हमारी जो मैम है HOD हैं उनके थ्रू हमने आज का विजिट किया है सिटी 41 का। सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मौका दिया, स्टूडेंट्स को भी और सबको। तालिबात ने प्रोग्रामिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा सेक्शन, असाइनमेंट और NLE डेस्क का विजिट किया। ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर ने असातिज़ा और तालिबात को जर्नलिज्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बारे आगाही दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छी बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने ये कदम उठाया कि मास कॉम के स्टूडेंट्स को लेकर आए, सिटी 41 के चैनल पे विजिट करवाया, और लिटरली ये इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, आने वालों के लिए, कि इसमें हमें एक एक चीज़ यहाँ पे सिखाई गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लाइव मॉर्निंग शो देखा, कैसे वो रिकॉर्ड होते हैं, कैसे कैमरा सेट होते हैं, पूरा सेटअप जो होते हैं वहाँ का। जी एक प्रैक्टिकल है इसमें, और हमने किस तरह आज सिटी 41 में विजिट किया और उसमें आकर हमने एक लाइव शो की रिकॉर्डिंग भी देखी। उसके अलावा उन्होंने हमें बताया कि लाइव शो कैसे होता है, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। शो के बैक कैमरास क्या होते हैं, क्या उनकी प्रोडक्शन होती है, क्या चीज़ होता है, तो मैं समझती हूँ कि हमारी फील्ड से रिलेटेड ये बहुत अच्छी हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। इस मौके पर चेयरपर्सन शोबा उर्दू इब्लागियात डॉक्टर सदफ नकवी ने ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर को अपनी किताब और गुलदस्ता भी पेश किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद।